वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે શીખીશું ધોરણ 4 વિષય હિન્દી। તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું પાઠ નંબર 10 એટલે કે બાલ કહાની એટલે કે બાળ વાર્તાઓ। તો ચાલો આપણે સરસ મજાની હિન્દીમાં એક વાર્તા છે તે જોઈએ। અહીંયા તમને વાર્તાનું નામ આપેલું છે કે ચતુર ખરગોશ। બરાબર, ચતુર એટલે કે હોશિયાર અને ખરગોશ એટલે કે સસલું। बराबर, तो આપણે એના વિશે સરસ મજાની આ વાર્તા સાંભળીએ। એક જંગલ था। बराबर, एक जंगल था એટલે કે એક જંગલ था એટલે હતું। उसमें शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। बराबर, उसमें એટલે કે તેમાં शेर એટલે કે સિંહ, हिरण એટલે કે हिरण, बराबर, हाथी, खरगोश એટલે કે સસલું, બાઘ એટલે કે વાઘ, આદિ એટલે કે વગેરે પશુ રહેતે થે એટલે કે વગેરે પ્રાણીઓ રહેતા હતા। એટલે કે તે જંગલની અંદર ઘણા બધા પ્રાણીઓ રહેતા હતા। शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। बराबर, तो शेर એટલે કે જે સિંહ છે તે જંગલના બધા જ પશુઓને ખાઈ જતો હતો। સભી દુખી દુખી થે। સભી એટલે કે બધા, દુખી દુખી એટલે કે દુખી દુખી, थे એટલે કે હતા, તો બધા જ દુખી દુખી હતા। પશુઓ की सभा हुई। बराबर, એટલે કે બધા પશુઓની હવે સભા થાય છે। फिर सब शेर के पास आए। बराबर, फिर એટલે કે પછી, सब એટલે કે બધા, शेर के पास आए એટલે કે સિંહની પાસે આવ્યા। उन्होंने शेर से विनती की। बराबर, उन्होंने એટલે કે તેણે, જે પ્રાણીઓ છે તે જંગલના પ્રાણીઓ હતા તેણે શેર પાસે જઈને વિનંતી की એટલે કે સિંહ પાસે જઈને વિનંતી કરી। हर रोज एक एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाइएगा। बराबर, હવે બધાની માંગ છે। बराबर, तो સિંહને બધા એવું કહે છે, हर रोज એટલે કે દરરોજ, એક એક જાનવર એટલે કે એક એક પ્રાણી, आपके पास आएगा એટલે કે તમારી પાસે આવશે, उसे आप खाइएगा એટલે કે તેને તમે ખાજો। शेर खुश हुआ એટલે કે સિંહ છે તે ખુશ થયો। એક દિન ખરગોશ की बारी आई। बराबर, एक एक કરીને બધા જ પ્રાણીઓ છે તે સિંહ પાસે જાય છે। તો એવામાં એક દિવસ એક ખરગોશ की बारी आई એટલે કે એક સસલાની જવાનો વારો આવ્યો। वह चतुर था એટલે કે તે હોશિયાર હતો। उस समय शेर बहुत भूखा था એટલે કે તે સમયે શેર એટલે કે સિંહ છે તે बहुत भूखा था એટલે કે ખૂબ જ ભૂખ્યો હતો। खरगोश उसके पास पहुंचा એટલે કે સસલું છે તેની પાસે પહોંચ્યું। उसने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था। बराबर, उसने એટલે કે તેણે शेर को बताया એટલે કે સિંહને બતાવ્યું कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था એટલે કે રસ્તામાં એક બીજો સિંહ પણ બેઠો હતો। उसने मुझे कहा એટલે કે એણે મને કહ્યું, मैं तुम्हें खाऊं એટલે કે હું તને ખાઈશ। यह सुन शेर दहाड़ा એટલે કે આ સાંભળીને શેર છે એ દહાડે છે। चल मुझे दिखा। बराबर, तो જે સિંહની પાસે ખરગોશ એટલે કે સસલું ગયું હતું, બરાબર, તે કહે છે કે મને એ બીજા સિંહ પાસે લઈ જા। चल मुझे दिखा એટલે કે ચાલ મને પણ દેખાડ। दोनों निकल पड़े दूसरे शेर की खोज में। बराबर, એટલે કે दोनों એટલે કે બંને, निकल पड़े એટલે કે નીકળી ગયા, दूसरे शेर की खोज में એટલે કે બીજા સિંહની ખોજમાં। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। खरगोश એટલે કે સસલો, ઉસે એટલે કે તેને, એક કુએ કે પાસ એટલે કે એક કૂવાની પાસે, ले गया એટલે કે લઈ ગયું। તો સસલું છે એ તેને એક કૂવાની પાસે લઈ ગયું। शेर ने पानी में देखा એટલે કે સિંહે પાણીમાં જોયું। पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी એટલે કે પાણીમાં ઉસે અપની એટલે કે એને પોતાની પરછાઈ એટલે કે પડછાયો, દિખાઈ દી એટલે કે જોવા મળ્યો। તો પાણીની અંદર તેને પોતાનો પડછાયો જોવા મળ્યો। उसे दूसरा शेर समझकर शेर पानी में कूदा। उसे એટલે કે તેને, दूसरा शेर એટલે કે બીજો સિંહ, समझकर એટલે કે સમજીને, शेर पानी में कूदा એટલે કે સિંહ પાણીમાં કૂદ્યો। और पानी में डूबकर मर गया। और એટલે અને पानी में डूबकर એટલે કે પાણીમાં ડૂબીને, મર ગયા એટલે કે મરી ગયો। બરાબર, તો સિંહ છે એની જેવો બીજો સિંહ સમજી અને તે કૂવાના પાણીની અંદર ડૂબી જાય છે। चतुर खरगोश बच गया।
बराबर। तो चतुर खरगोश एटले के होशियार ससलू बच गया एटले के बची गયું। उसने अपनी चतुराई से जंगल के प्राणियों की जान बचाई। उसने एटले के तेणे अपनी एटले के पोतानी चतुराई एटले के होशियारीगिरी करीने जंगलना बधा ज प्राणियोनो जीव बचाव्यो। तो बाळमित्रो सरस मजानी आपणे जे चतुर खरगोश विषयनी वार्ता जोई ते वार्ता द्वारा आपणने बोध मळे छे के माणसे पोतानी बुद्धिनो समयसर उपयोग करवो जोईए। अहींया तमने केटलाक एना आधारे प्रश्न पूछेला छे के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया सौथी पहेलो प्रश्न तमने पूछवामां आवेलो छे कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते थे। तो बाळमित्रो जंगल में कौन कौन से जानवर रहते थे तो आपणे जवाबमां लखीशुं कि जंगल में शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे अथवा आदि जानवर रहते थे। बीजू अहींया पूछेलू छे कि शेर क्या करता था। तो जवाब में लखीशुं कि शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। शेर के पास जाकर सबने क्या कहा। तो लखीशुं कि शेर के पास जाकर सबने कहा कि हर रोज एक एक जानवर आपके पास आएगा। उसे आप खाइएगा। खरगोश ने शेर को क्या बताया। तो खरगोश ने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खाऊं। तो આપણે જવાબમાં લખીશું कि उसने शेर को बताया रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा था। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें खाऊं। पछी अहींया 5 नंबरनुं आपेलुं छे कि शेर पानी में क्यों कूदा। तो बाळमित्रों शेर एटले के सिंह छे ते पाणीनी अंदर कई रीते कूद्यो बराबर। तो ए शा माटे कूद्यो। तो आपणे जवाबमां लखीशुं कि तेने पाणीनी अंदर तेनी पोतानी परछाई एटले के પડછાયો जोयो परंतु ए बीजो शेर एटले के बीजो सिंह समजीने पाणीनी अंदर कूद्यो। तो आपणे जवाबमां लखीशुं कि उसे दूसरा शेर समझकर शेर पानी में कूदा। पछी अहींया आपणने आपेली छे जेवी रीते
चतुर खरगोश जोई एवी ज रीते आपणे अहींया बीजी बाळ वार्ता आपेली छे के चीटी और कबूतर। तो चीटी एटले थशे कीड़ी और एटले अने कबूतर एटले के कबूतर। तो अहींया कीड़ी अने कबूतरनी सरस मजानी आपणे लोको वार्ता जोईए। एक जंगल में एक नदी बहती थी, एटले के एक जंगल में एक नदी वहती हती। उसके तट पर एक पेड़ था, बराबर। उसके तट एटले के तेना किनारा पर एक पेड़ था, एटले के एक झाड़ हतुं। उस पर कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। एटले के तेना पर कागड़ो, कबूतर, तेतर, पोपट, कोयल, मैना वगैरह पक्षियों रहता था। पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था, बराबर। एटले के पेड़ के नीचे एटले के झाड़नी नीचे चींटियों का बिल एटले के कीड़ीओनो दर हतुं। एक दोपहर को एक शिकारी आया, बराबर। एटले के एक बपोरे एक दोपहर को एटले के बपोરના समये एक शिकारी एटले के शिकार करवा આવ્યો। एक कबूतर डाली पर आंखे मूंदे बैठा था, बराबर। एटले के एक कबूतर डाळ ऊपर चढ़ीने तेनी आंखोथी ए जोईने बैठो हतो। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर निकाला, बराबर। तो शिकारी छे ए पोतानो शिकार छे करवा माटे करने के लिए एटले के करवा माटे तीर निकाला एटले के तीर काढे छे। कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया, एटले के कबूतर पर निशाना लगाने के लिए एटले कबूतर ने पोताना निशानी थी तो तेना माटे तेने कमान पर चढ़ाया, एटले के पोतानुं तीर छे ए चढ़ावे छे। चीटी ने अहीं देखा, बराबर। एटले के कीड़ीए आ जोयुं। चीटी ने सोचा, एटले के कीड़ीए विचार्युं कि यह तो कबूतर को मार डालेगा, एटले के आ तो कबूतर ने मारी नाखशे। तुरंत उसने शिकारी के पैर पर काटा, एटले के तरत ज एणे शिकारीना पग पर कवड़ी, बराबर। शिकारी के हाथ से तीर गिर गया और शिकारी का निशाना चूक गया, एटले के शिकारीना हाथमांथी तीर छे नीचे पड़ी जाय छे अने शिकारी छे पोतानो निशानो चूकी गयो। कबूतर बच गया, एटले के कबूतर बची गयुं। कुछ दिन बाद उसी कबूतर ने देखा कि चीटी नदी में गिर गई थी, बराबर। हवे कुछ दिन एटले के थोड़ा दिवस बाद एटले के पछी उसी कबूतर ने देखा एटले के तेज कबूतरे जोयुं कि चीटी नींद में गिर गई थी, बराबर। एटले के नदी में गिर गई थी, बराबर। तो ए नदी में पड़ी गई हती। वह पानी में डूब रही थी, एटले के ते पानीनी अंदर डूबी रही हती। तुरंत कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला, एटले के तरत ज कबूतरे झाड़नुं एक पत्तू एटले के पान पानीनी अंदर नाख्युं। चीटी उस पत्ते पर चढ़ गई, लेकिन कीड़ी ते पांदड़ा पर चढ़ी गई। चीटी भी बच गई, बराबर। एटले कि कीड़ी पण बची गई। इस तरह चीटी और कबूतर ने एक दूसरे की जान बचाई, एटले कि आवी ज रीते कीड़ी अने कबूतरे एक बीजानो जीव बचाव्यो। वे दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे मित्र बन गए, एटले के ते बंने एक बीजाना सारा मित्रों बनी गया। तो बाळ मित्रों, आ वार्ता परथी आपणे ख्याल आवे छे कि आपणे कोईनी पण मदद करवी जोईए, केम के आपणा खराब समय पर पण आपणे कोई मदद थई शके छे। अहींया आपणे तेना आधारे કેટલાક प्रश्नों आपेला छे जेमना उत्तर आपणे अहींया लखीशुं। तो अहींया सौथी पहेલું तमने आपेલું છે કે पेड़ कहाँ था, बराबर। तो आपणे लखीशुं कि नदी के तट पर एक पेड़ था। नदी के तट पर एक पेड़ था। बीजा नंबर पर आपेलू छे कि पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते थे। तो आपणे लखीशुं कि पेड़ पर कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। पछी अहींया त्रीजा नंबर पर आपेलुं छे कि पेड़ के नीचे क्या था, बराबर। एटले के झाड़नी नीचे शुं हतुं। तो आपणे जवाबमां लखीशुं
कि पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। शिकारी ने किस पर निशाना साधा? चौथा नंबर पर आपेलू है कि शिकारी ने किस पर निशाना साधा। तो આપણે અહીંયા જવાબમાં લખીશું કે શિકારીને કબૂતર પર નિશાના સાધા। પછી અહીંયા આપણને આપેલું છે કે કબૂતર ક્यों બચ ગયા। तो આપણે જવાબમાં લખીશું કે ચીંટીને शिकारी के पैर पर काटा। इसलिए कबूतर बच गया। પછી અહીંયા આપણને આપેલું છે 6 નંબર ઉપર કે કબૂતરને ચીંટી की कैसे मदद की। तो આપણે જવાબમાં લખીશું કે કબૂતરને पेड़ का पत्ता पानी में डालकर चींटी की मदद की। तो बाळ मित्रों आज आपणे सरस मजानी बाळ वार्ता जोई। तो जेनी अंदर आपणे चींटी और कबूतर वार्ता जोई अने जेना पहला आपणे चतुर खरगोशनी वार्ता जोई। तो आ बंने वार्ता परथी आपणे सरस मजाना बोध पण मळी गया अने जेना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाब पण लखता आवडी गया। तो बाळ मित्रों आवी ज रीते बीजी अलग वार्ताओ आवे तो तमे एना आसानाथी प्रश्नोना जवाब पण लखी शको छो। तो आगळना विडियोमां पण आवी ज रीते नवी वार्ता साथे फरी मळीशुं। वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों।